کل منایا جائے گا 7واں بین الاقوامی یوم یوگ۔ دنیا بھر میں تقریبات کی ہو رہی ہیں تیاریاں۔ کووڈ-19 کی وبا کے پیش نظر اجتماعی سرگرمیوں پر پابندی۔ یوم یوگ پر وزیر اعظم نریندر مودی کریں گے خطاب۔ دوردرشن کے تمام چینلوں پر صبح 6:30 بجے شروع ہوگی یوم یوگ کی نشریات۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ابراہیم رئیسی کو ایران کا نیا صدر بننے پر دی مبارکباد۔ کہا صدر رئیسی کے ساتھ مل کر بھارت ایران تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ہیں پر امید۔ بھارت میں کووڈ انفیکشن کے یومیہ معاملوں کی تھمی رفتار۔ 81 روز بعد 60,000 سے بھی کم معاملے درج۔ وبا سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد متاثر ہونے والوں کی تعداد سے زیادہ۔ صحت یابی کی شرح بڑھ کر ہوئی 96.27%۔ کورونا معاملوں میں کمی آنے کے ساتھ ہی ریاستوں میں ان لاک کا عمل جاری۔ تلنگانہ میں ہٹا لاک ڈاؤن۔ کرناٹک میں ان لاک 2 کا کل ہوگا آغاز۔ 5% سے کم انفیکشن کی شرح والے اضلاع میں لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں برتی جائے گی نرمی۔ گوا میں کرفیو کی مدت میں 1 ہفتے کی وسعت۔ کورونا کے خلاف ٹیکہ کاری مہم تیز رفتار سے جاری۔ اب تک 27.66 سے زیادہ لوگوں کو لگے کووڈ ٹیکے۔ کل 38 لاکھ لوگوں نے لی کورونا ویکسین۔ 18 سے 44 سال کی عمر کے زمرے میں اب تک 5.50 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے لگوائے ٹیکے۔ برازیل میں کووڈ-19 سے مرنے والوں کی تعداد ہوئی 5 لاکھ سے زیادہ۔ ریو ڈی جینیرو میں صدر کے خلاف سڑکوں پر اترے ہزاروں لوگ۔ کووڈ بحران کے بندوبست میں لاپرواہی کے خلاف ہو رہے ہیں مظاہرے۔ کھیلوں میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل کے تیسرے دن کا کھیل جاری۔ بارش کی وجہ سے آدھا گھنٹہ دیر سے آج شروع ہوا کھیل۔ کل دوسرے دن بھارت نے بنائے تھے 3 وکٹ کے نقصان پر 146 رن۔ آداب ناظرین، شام 5:30 بجے کی اردو خبروں میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ نظر ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات پر۔ کل پوری دنیا میں 7واں عالمی یوم یوگ منایا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی شہریوں سے خطاب کریں گے۔ کورونا کی وبا کے پیش نظر یوگا کے عالمی دن کے موقع پر منعقد ہونے والا اہم پروگرام صبح 6:30 بجے سے دوردرشن کے تمام چینلوں پر شروع ہوگا۔ پروگرام میں آیوش کے وزیر مملکت کرن رجیجو کا خطاب اور مورارجی دیسائی نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف یوگا کی یوگا نمائش کا براہ راست نشریہ بھی شامل ہے۔ وزارت آیوش کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق اس سال کے عالمی یوم یوگ کا مرکزی موضوع یوگا فار ویلنس یعنی صحت کے لیے یوگا ہے۔ یوگا کا عالمی دن دنیا کے 190 ممالک میں منایا جائے گا۔ یوگا کے لاکھوں چاہنے والوں نے اپنے گھروں سے اس تقریب کا حصہ بننے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ 7واں بین الاقوامی یوم یوگ کووڈ کی وبا کے درمیان پوری دنیا میں زور و شور سے منایا جا رہا ہے۔ بیرون ملک بھارتی سفارت خانوں میں بھی یوگ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ بیجنگ میں واقع بھارتی سفارت خانے میں بھی آج یوگ دیوس منایا گیا۔ پیش ہے ڈی ڈی نیوز کی یہ خصوصی رپورٹ۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں واقع بھارتی سفارت خانے میں 7واں بین الاقوامی یوگ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے متعدد چینی یوگا پریکٹیشنر اور سفارتکار سمیت 500 سے زائد افراد انڈیا ہاؤس میں جمع ہوئے۔ یوگا سیشن کی قیادت موہن بھنڈاری نے کی، جو چین میں پہلے بھارتی یوگا گروؤں میں سے ایک ہیں۔ کئی دیگر بھارتی یوگا گرو ہیمنت کمار، سوہن سنگھ، این کے سنگھ اور آشیش بہوگنا نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ بھارت کے سفیر وکرم مصری نے اس موقع پر ہر فرد کی مجموعی صحت کے لیے یوگا کی مشق کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ While there is a global effort underway to develop vaccines and treatments, not only for COVID-19 but for many other afflictions as well, we should not lose sight of the fact that yoga offers us a physical as well as a spiritual path to wellness. At a time when our mental faculties
are being increasingly bombarded by external factors, yoga offers us the space to slow down our minds, relieve stress, and impart balance to our existence. विक्रम मिस्री खुद भी योगा प्रैक्टिस का बहुत शौक रखते हैं। उन्होंने कहा कि योगा के जिस्मानी पहलुओं का मरकजी मकसद ज़हन को ध्यान के लिए तैयार करना है। Swami Vivekanand Cultural Center of the Embassy of India, which has been undertaking a series of cultural and other events, including yoga outreach events, and not just in the run-up to this important day. In the coming days, it will be expanding its activities by taking up the very important task of certification of yoga professionals for the purposes of training. मिस्री ने भारतीय सिफारत खाने के स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के डायरेक्टर को योगा आउटरीच प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू करने पर मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर आने वाले दिनों में अपनी सरगर्मियों में इजाफा करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा दिनों में मरकज के जरिए मजीद तफसीलात फराहम की जाएंगी। भारत के सफीर ने योगा गुरुओं और ऑडियो और वीडियो मुकाबले के फातिहीन को भी इनामात से नवाजा, जिनमें चीनी शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत देखी गई। शंघाई और गुआंगशू में भारतीय कौंसिल ने भारत की कदीम योगा रिवायत की अक़दार को फ़रोग़ देने के लिए मुतअद्दिद योगा प्रोग्रामों का इनेकाद कर रहे हैं। बीजिंग से अंशुमन मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में योग की इंस्ट्रक्टर और थेरेपिस्ट इशरत जहां योग के फ़ायदे के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि योग दिल, सांस और जिस्म को काबू में रखने में मदद करता है। It's good. 21st June International Yoga Day. People now they understand the significance of yoga because it's work only not for body. It's work for mental health, which is very important. And it just helps you to control your mind. और अब बात भारत में कोरोना वबा की सूरत हाल की। मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया मामलात में मुसलसल कमी आ रही है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 58,419 नए मामला दर्ज किए गए। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 87,619 मरीज़ इलाज कराने के बाद सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 96.27% हो गई है। एक्टिव मामलात की तादाद कम होकर 7,29,243 रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना की वजह से 1,576 अफराद की मौत हुई है। इस वक्त हफ्तावार पॉजिटिविटी की शरह 3.3% है और यौमिया पॉजिटिविटी शरह 3.2% है, जो मुसलसल 13 दिन से 5% से कम है। मुसलसल 38वें दिन सेहतयाब होने वालों की यौमिया तादाद नए मुतासरा केसों से ज़्यादा है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम में भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम के तीसरे मरहले के तहत मुल्क में अब तक 27 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके साथ ही 18 से 44 साल की उम्र के 20,49,000 से ज़्यादा अफराद ने कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक हफ्ते के रोज़ ली। कोविड-19 के खिलाफ जंग को तक़वियत देने के लिए भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। वैक्सीनेशन मुहिम के 195 दिन 38 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। तीसरे मरहले के तहत मुल्क में 18 से 44 साल तक की उम्र के अफराद को टीका लगाने की मुहिम में तेज़ी आई है। मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी मुहिम के तीसरे मरहले के तहत 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों को अब तक 5 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। वज़ारत सेहत का कहना है कि जांच, निशानदही, इलाज और कोविड के मुनासिब बर्ताव के साथ वैक्सीनेशन भी इस वबा के फैलने को रोकने और इससे मुताल्लिक़ इंतज़ामात के लिए हुकूमत की जामे हिकमत अमली का लाज़मी जुज़ू है। मुल्क में कोरोना की जांच की सलाहियत में वसअत आई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने बताया कि मुल्क भर में 19 जून तक मजमूई तौर पर 39 करोड़ 10 लाख 19,083 नमूनों की जांच की गई। इनमें सिर्फ कल यानी 19 जून को 18,11,446 नमूनों की जांच हुई है। और कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम तेज़ रफ्तार से जारी है। इसी के तहत प्रसार भारती के जरिए नई दिल्ली में 2 रोज़ा टीकाकारी कैंप का इनेकाद किया गया। नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन के
रंग भवन में मुनक़िद इस 2 रोज़ा कैंप में आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम करने वाले 400 से ज़्यादा मुलाजमीन ने टीके लगवाए। आज से तेलंगाना में कोविड-19 पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत रियासती काबीना की मीटिंग में 1 जुलाई से ऑफलाइन क्लासों के लिए मुकम्मल तौर पर पाबंदियों को ख़त्म करने और तालीमी इदारों को खोलने का फ़ैसला किया गया है। रियासत में कोविड-19 के नए मामलात की तादाद में नुमाया कमी और इन्फेक्शन की शरह में कमी के पेश नज़र ये फ़ैसला लिया गया है। रियासती काबीना ने तमाम महकमों के अफसरान को भी हिदायत दी है कि वो लॉकडाउन के दौरान आयद तमाम पाबंदियों को ख़त्म करें। कर्नाटक के 16 अजला में पीर से लॉकडाउन पाबंदियों में मजीद नरमी करने का ऐलान किया गया है। ये नरमी उन अजला में की जाएगी जहां इन्फेक्शन की शरह 5% से भी कम है। दूसरे 14 अजला में लॉकडाउन पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। इन अजला में इन्फेक्शन की शरह 5% से ज़्यादा है। रियायत वाले 16 अजला में 50% सलाहियत के साथ पब्लिक बसें और मेट्रो रेल चल सकेंगी। दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी और 50% गुंजाइश के साथ होटलों को खोल सकेंगे। ताहम स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, इबादत गाहें और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। वज़ीर आला ने कहा है कि तमाम अजला में रात और हफ्ते के आखिर में कर्फ्यू जारी रहेगा। गोवा हुकूमत ने कोविड की वजह से रियासत भर में जारी कर्फ्यू को 28 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। हफ्ते के रोज़ वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। सिनेमा हॉलों, थिएटरों, मल्टीप्लेक्सेस, तफरीही इलाकों के अलावा मॉल्स में दुकानों को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे के दरमियान खोलने की इजाज़त है। मछली बाजार भी खुला रहेगा। ख्याल रहे कि गोवा हुकूमत कोविड वैक्सीन की पहली खुराक 30 जुलाई तक 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम लोगों को देने का मंसूबा बना रही है। झारखंड में कोरोना इन्फेक्शन की चेन तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन जारी है। दारुल हुकूमत रांची समेत पूरी रियासत में ज़रूरी सरगर्मियों के अलावा तमाम दुकानें और इदारे बंद हैं। पुलिस फोर्स को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया है ताकि कोई भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी ना कर सके। रियासती हुकूमत ने लोगों से अपील की है कि वो बिला वजह अपने घरों से बाहर ना आएँ। बसूरत दिक्रे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मुकम्मल लॉकडाउन हफ्ते की शाम 4 बजे से शुरू हुआ है और पीर की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। बीजेपी के किसान मोर्चा के नेशनल ऑफिस बेयरर्स की दिल्ली में 22 जून को अहम मीटिंग होने वाली है। बीजेपी के कौमी सदर के खिताब से इस मीटिंग का आगाज़ होगा। ये मीटिंग ऐसे वक्त में होने जा रही है जब किसानों से वाबस्ता मामले ज़ेर बहस हैं। DAP खाद पर रियायत में इजाफा करने और खरीफ की अहम फसलों पर ज़्यादा MSP का ऐलान करने के साथ ही किसानों की फलाह से मुंसलिक कई अहम फैसलों पर हुकूमत ने इक़दामात किए हैं। गेहूं की खरीद में भी नया रिकॉर्ड बनाया है। पेश है बीजेपी किसान मोर्चा के मीडिया इंचार्ज मनोज यादव से हमारे नामानिगार की बातचीत। क्या अहम होगा बैठक में, एजेंडा क्या है बैठक? ये पहली फिजिकल बैठक है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी इस बैठक का उद्घाटन करेंगे और इसमें समापन भाषण और मार्गदर्शन होगा माननीय BL संतोष जी का होगा। तो इस बैठक में अहम यही है कि कोरोना काल में हमने क्या क्या महती भूमिका निभाई है किसान मोर्चा ने। जैसे किसान मोर्चा ने हेल्प डेस्क लगाए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हेल्प डेस्क का कंसेप्ट लेकर के आए और अभी संगठन को एक मार्गदर्शन देंगे कि किस तरह से संगठन सरकार और जनता के बीच में एक सेतु की भूमिका निभा सके। सरकार की योजनाएं हैं, सरकार के जितने भी जो फैसले हैं, किसानों के हितैषी जितने भी कार्यक्रम हैं, उनको जनता तक किस तरह से किसान मोर्चा पहुंचाए। विशेष करके इसमें एक जो मामला है वो ये है कि FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संगठन ज़्यादा से ज़्यादा बने, क्योंकि ये फैसला माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया कि कृषि उत्पादक संगठन ज़्यादा से ज़्यादा बने देश भर में और सरकार का लक्ष्य 10,000 का है तात्कालिक, लेकिन ये जो दीर्घकालिक लक्ष्य है वो 1 लाख FPO बनाने का लक्ष्य है। किसान मोर्चा के सामने चुनौती होगी कि जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश जो आप लोग आरोप लगाते हो उसे दूर किया जाए, क्योंकि MSP को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार सरकारी खरीद ज़्यादा हो रही है। कोरोना काल में जब किसान मोर्चा भाजपा का गली गली में गांव-गांव में पहुंचा हुआ था
कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहा था, सूखा राशन पहुंचा रहा था, मास्क सैनिटाइजर पहुंचा रहा था, हेल्प डेस्क हम लोग लगा करके लोगों की मदद कर रहे थे। वहीं तथाकथित किसान आंदोलन के लोग कोरोना को फैलाने का काम कर रहे थे। और इसी कोरोना काल में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड खरीद अगर कहीं हुई है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुई है। गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई, सरसों की रिकॉर्ड खरीद हुई। जो हो हल्ला मचा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ना एमएसपी खत्म हुआ, ना एपीएमसी मंडियां खत्म हुई। तो नरेंद्र मोदी सरकार जो 3 किसान बिल लेकर के आए हैं, उनका एक ही लक्ष्य है, किस तरह से किसानों की आय दुगनी हो। अगली खबर तमिलनाडु के जनूब मशरक में खुश्क साली से मुतासरा ज़िला रामनाथपुरम के निधिपुर गांव को अब हर रोज़ समुद्री पानी से तैयार 20,000 लीटर पीने का साफ पानी मिल सकेगा। इसके लिए शमसी तवानाई थर्मल फॉरवर्ड ऑस्मोसिस निज़ाम का इस्तेमाल समुद्री पानी को साफ करने के लिए किया जा रहा है। अब ये निज़ाम खित्ते के मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब किया गया है। रोज़ाना 2 लीटर अच्छे म्यार का पीने का पानी गाँव के 10,000 अफराद के लिए मुहैया कराया जाएगा और इस तरह गाँव में पीने के पानी की शदीद किल्लत को कामयाबी से दूर किया जाएगा। IIT मद्रास ने इंपीरियल KGDS काबिल तजदीद तवानाई के ताउन से इस निज़ाम को कामयाबी के साथ कायम और पेश किया है। महकमा साइंस और टेक्नोलॉजी DST के ये इक़दाम पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ साहिली दही इलाकों में उभरती हुई टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की राह हमवार कर सकता है। केरला के शहर कोची के मगरबी साहिल से कुछ फासले पर बहिराए अरब में मैन की शक्ल का एक ज़ेरियाब जजीरे को गूगल मैप सैटेलाइट इमेजरी पर देखा गया है। हालांकि आइलैंड जैसा दिखने वाला ये टुकड़ा मगरबी कोची के साइज़ का तकरीबन निस्फ मालूम होता है। वहीं समुद्र में कोई मरई साख्त नहीं देखी गई है। इससे हैरान होकर माहिरीन अब इसको पानी के अंदर की साख्त ख्याल कर रहे हैं। इसके साथ ही केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज़ एंड ओशन स्टडीज़ के ओहदेदार भी इसकी तहकीक करने का मंसूबा बना रहे हैं। और जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमों के लिए भारत के मुस्तक़िल मिशन ने भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए क़वाइद के बारे में इंसानी हुकूक़ कौंसिल के खुसूसी एक्शन विंग के ज़रिए इज़हार तशवीश के बारे में अपना मौक़िफ़ रखा है। मिशन ने वाज़ेह किया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए क़वाइद को तमाम हससदारों के साथ बातचीत के बाद ही तैयार किया गया है। मिशन ने कहा है कि भारत अपने जमहूरी तरीक़ाकार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। भारत के आइन में इज़हार राय की आज़ादी की ज़मानत दी गई है और एक आज़ाद अदलिया और एक ताकतवर मीडिया भारत के जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है। नए क़वाइद सोशल मीडिया के आम सारिफीन को बाइख्तियार बनाएंगे। इसमें सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की ज़्यादती के शिकार अफराद की समाअत के लिए एक फ़ोरम होगा। ईरान के सदारती इंतखाबात में इब्राहिम रईसी ने कामयाबी हासिल की है। रईसी के हामियों की एक बड़ी तादाद ने तेहरान के इमाम हुसैन स्क्वायर पर उनकी फतह का जश्न मनाया। सदारती इंतखाबात में तमाम 28.9 मिलियन बैलेट गिनने के बाद रईसी को 17.9 मिलियन वोटों के साथ कामयाबी हासिल हुई है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इब्राहिम रईसी को ईरान का नया सदर बनने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट में कहा कि ईरान का सदर मुंतखब होने पर इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद। मैं भारत और ईरान के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए उनके साथ काम करने का मुंतज़िर हूँ। इस बीच ईरान जौहरी मुआहदे की बहाली पर बातचीत करने वाले फ़रीक आज वियना में बाज़ाब्ता मीटिंग करेंगे। इस बातचीत में चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, बरतानिया और ईरान के नुमाइंदे शरीक होंगे। यूरोपीय यूनियन के एक बयान के मुताबिक शुरा जौहरी मुआहदे में अमरीका की मुमकिन वापसी और इसके मुकम्मल और मौसर निफाज को यकीनी बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। अप्रैल के बाद से वियना JCPOA जॉइंट कमीशन के ज़राए और मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में गैर रस्मी मीटिंगों की मेज़बानी कर रहा है, जिसका मकसद 2015 के जौहरी मुआहदे को टूटने से बचाना है। और अब नज़र डालेंगे दुनिया भर में कोरोना वबा की सूरत हाल पर। दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन के मामले 17 करोड़ 89 लाख से तजावज़ कर चुके हैं। अब तक 38 लाख 74 अफराद से ज़्यादा अफराद इस इन्फेक्शन की वजह से हलाक भी हो चुके हैं। ताहम इलाज के बाद दुनिया में 16 करोड़ 34 लाख से ज़्यादा अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। अमरीका कोरोना से मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त है। अमरीका में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात की कुल तादाद 1 करोड़ 78 लाख से ज़्यादा है। अमरीका में कोरोना की वजह से हलाकतों की तादाद 6 लाख से ज़्यादा है। ब्राज़ील में
کورونا انفیکشن کے معاملات 1 کروڑ 78 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور اس بیچ برازیل میں کورونا کی وبا سے ہلاکتوں کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ کووڈ-19 بحران کے بندوبست کو لے کر برازیل کے صدر جائر بولسونارو کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ہفتے کے روز ہزاروں افراد ریو ڈی جنیرو میں صدر بولسونارو اور کووڈ-19 کے بندوبست کے بارے میں حکومت کے موقف کے خلاف احتجاج کرنے سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے صدر پر کووڈ کے ٹیکے لگانے میں غفلت برتنے اور ماسک پہننے کی ضرورت پر سوال اٹھانے کا الزام عائد کیا۔ برازیل میں اب تک 1 کروڑ 78 لاکھ 83 ہزار سے زیادہ معاملات رپورٹ ہوئے ہیں۔ کورونا سے ہونے والی اموات کے معاملے میں یہ امریکہ کے بعد دوسرا ملک بن گیا ہے۔ امریکہ کے جنوب مشرق میں ٹراپیکل اسٹارم کلاؤڈٹ کے سبب سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ طوفان کلاؤڈٹ سے لوئیسیانا سے فلوریڈا تک امریکی خلیجی ساحلی علاقے میں موسلادھار بارش سے ہفتے کے روز جنوب مشرقی امریکہ میں بڑے پیمانے پر سیلاب آیا۔ وہاں کے کچھ مقامی ٹیلی ویژن چینلوں میں دکھائے گئے مناظر کے مطابق سیلیڈل شہر سیلاب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ یو ایس نیشنل ہریکین مرکز نے بتایا کہ سمندری طوفان کلاؤڈٹ موبائل الاباما کے شمال مشرق میں تقریباً 130 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے ساتھ برقرار تھا۔ ساحلی علاقے مسیسپی اور الاباما میں دوپہر تک بھاری بارش اور خطرناک سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ کلاؤڈٹ کے ہفتے کی شب تک کمزور پڑنے کی امید تھی۔ رخ کریں گے کھیل کے میدان کا۔ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل کے تیسرے دن کا کھیل جاری ہے۔ آج کا کھیل بارش کی وجہ سے آدھا گھنٹہ دیر سے شروع ہوا۔ لنچ تک بھارت نے 7 وکٹ کے نقصان پر 211 رن بنا لیے تھے۔ اس سے پہلے بھارت نے کھیل کے دوسرے دن کل 3 وکٹ کے نقصان پر 146 رن بنائے تھے۔ رویندر جڈیجا 15 رن بنا کر جبکہ ایشانت شرما 2 رن بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ کپتان وراٹ کوہلی 44 اور ریحان نے 49 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور اشون نے 22 رن بنائے۔ اور جرمنی نے 2 گول کی مدد سے پرتگال کو 4-2 سے شکست دے کر یورو کپ میں اپنی پہلی جیت حاصل کر لی ہے۔ پرتگال نے آغاز میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا لیکن آخر میں جرمنی کو کامیابی ملی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سے۔ کل منایا جائے گا 7واں بین الاقوامی یوم یوگ۔ دنیا بھر میں تقریبات کی ہو رہی ہیں تیاریاں۔ کووڈ-19 کی وبا کے پیش نظر اجتماعی سرگرمیوں پر پابندی۔ یوم یوگ پر وزیر اعظم نریندر مودی کریں گے خطاب۔ دوردرشن کے تمام چینلوں پر صبح 6:30 بجے شروع ہوں گی یوم یوگ کی نشریات۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ابراہیم رئیسی کو ایران کا نیا صدر بننے پر دی مبارکباد۔ کہا صدر رئیسی کے ساتھ مل کر بھارت ایران تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ہیں پر امید۔ بھارت میں کووڈ انفیکشن کے یومیہ معاملوں کی تھمی رفتار۔ 81 روز بعد 60,000 سے بھی کم معاملے درج۔ وبا سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد متاثر ہونے والوں کی تعداد سے زیادہ۔ صحت یابی کی شرح بڑھ کر ہوئی 96.27%۔ کورونا معاملوں میں کمی آنے کے ساتھ ہی ریاستوں میں ان لاک کا عمل جاری۔ تلنگانہ میں ہٹا لاک ڈاؤن۔ کرناٹک میں ان لاک 2 کا کل ہوگا آغاز۔ 5% سے کم انفیکشن کی شرح والے اضلاع میں لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں برتی جائے گی نرمی۔ گوا میں کرفیو کی مدت میں 1 ہفتے کی وسعت۔ کورونا کے خلاف ٹیکہ کاری مہم تیز رفتار سے جاری۔ اب تک 27 کروڑ 66 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو لگے کووڈ ٹیکے۔ کل 38 لاکھ لوگوں نے لی کورونا ویکسین۔ 18 سے 44 سال کی عمر کے زمرے میں اب تک 5 کروڑ 50 سے زیادہ لوگوں نے لگوائے ٹیکے۔ برازیل میں کووڈ-19 سے مرنے والوں کی تعداد ہوئی 5 لاکھ سے زیادہ۔ ریو ڈی جنیرو میں صدر کے خلاف سڑکوں پر اترے ہزاروں لوگ۔ کووڈ بحران کے بندوبست میں لاپرواہی کے خلاف ہو رہے ہیں مظاہرے۔
کھیلوں میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل کے تیسرے دن کا کھیل جاری. لنچ تک بھارت نے بنائے 7 وکٹ پر 211 رن. کل دوسرے دن بھارت نے بنائے تھے 3 وکٹ کے نقصان پر 146 رن. اور اسی کے ساتھ یہ وقت ہو گیا ہے آپ سبھی سے وداع لینے کا. آپ ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب. Special edition on COVID series where we decode the COVID pandemic. We talk about the big picture. Are we now, as we speak, Dr. Shetty, in the grip of the